تیری چوکھٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے. دل کو سکون کچھ اس قدر ملا کہ ہم سر کو جھکا کر اٹھانا بھول گئے. آئے ہیں تیرے در پر گرو جی دیدار کی حسرت کو لے کر. دیکھا تیری سونی صورت کو تو ہم ہوش میں آنا بھول گئے. جے گرو جی. جے گرو جی. جے گرو جی سنگت جی. سنگت جی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل جائے. پرم پتا گرو جی کا اننتم شکرانہ. گرو جی کے آشیرواد سے ہی ہم سنگت جی کے ستسنگ ریکارڈ کر باقی سنگت جی تک پہنچا رہے ہیں. سنگت جی اگر آپ بھی اپنا ستسنگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. جے گرو جی. ستسنگ کو انت تک ضرور سنیے گا سنگت جی. ہو سکتا ہے آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ کو اس ستسنگ میں مل جائیں. ستسنگ کا پاٹھ کرنے میں مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو گرو جی اور سنگت جی مجھے معاف کرنا. پرم پتا گرو جی کے چرنوں میں پرنام کرتے ہوئے منتر جاپ کے ساتھ شروع کریں گے آج کے ستسنگ. اوم نمہ شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے. گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے. گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی. اننتم شکرانہ گرو جی. اوم نمہ شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے. گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. اننتم شکرانہ گرو جی. سنگت جی یہ میرا شکرانہ ستسنگ ہے. سنگت جی میرے پاس بہت دن سے گرو جی کے میسیج آ رہے تھے کہ گرو میرے برتھ ڈے والے دن ستسنگ کرائیے بہتر میں تجھے بلیس کرنے آؤں گا. اسی کے میسیج آ رہے تھے بار بار اور مجھے لگ رہا تھا کہ سبھی کے پاس آ رہے ہوں گے. میں اتنا غور نہیں کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس اس سے ایک مہینے پہلے بھی جب گرو جی کی سمادھی دیوس تھا نا تب بھی آ رہا تھا میسیج پتر کرانے کے لیے. تو میں تب من سے راضی ہو گئی کہ مطلب میں کرواؤں گی ہی. ویسے میں نے ایک بار ستسنگ کیا ہے 1 گھنٹے کا اکیلے بیٹھ کے. پر ابھی بڑا ستسنگ کرے گی تو اپنے گھر میں ایسا کر کے ہی آ رہا تھا بار بار. تو میں تب نہیں ہو پایا تو مجھے لگا کہ ابھی بھی ایسے میسیج آ رہے ہوں گے. میں نے اتنا غور نہیں کیا. تو پھر ستسنگ کے 1 ہفتہ پہلے ہی میری بہن کا فون آیا کہ میں 7 تاریخ کو تیرے گھر آؤں گی. یہ کر کے بولا مطلب 7 تاریخ کو میں آؤں گی ستسنگ اپن کریں گے. میں نے اس کو منع ہی نہیں کرا. میں نے تو کچھ ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ستسنگ کروں. مطلب کروں گی پر وہی پہلے کیا تھا ویسے میں اکیلے بیٹھ کے ہی کر لوں گی. یہی سوچ رہی تھی میں. مطلب بڑا ستسنگ نہیں ہو پائے گا میرے سے کیونکہ میرے انکل میرے گھر میں نہیں مانتے ہیں اور باقی سدسیہ بھی نہیں مانتے. تو بڑا ستسنگ کیسے کر سکتی ہوں میں اکیلے. مطلب سہیوگ تو چاہیے. تو پھر اس کے بعد پھر میری 2 نمبر کی بہن ہے مطلب میری بڑی بہن. پھر انہوں نے بھی سامنے سے ہی فون کرا جبکہ میں نے کسی کو فون ہی نہیں کیا کیونکہ مجھے کرنا ہی نہیں تھا. چھوٹا ستسنگ کرنا تھا اکیلے بیٹھ کے. تو میں نے کسی کو بولا ہی نہیں. پر انہوں نے بھی سامنے سے کال کیا کہ میں بھی 7 تاریخ کو آؤں گی تیرے گھر پہ. مطلب میری چھوٹی والی بڑی والی ایک اور دوسری بہن ہے وہ بھی جا رہی تو بولے کہ میں بھی آ جاؤں گی. بولا تو میں نے منع ہی نہیں کرا. آ جانا کہ اپن 2-3 مہینہ مل کے کر لیں گے بولا میں نے. اس کے بعد پھر ایک جن کو میں نے گرو جی سے مطلب ہم تو کون ہوتے جوڑنے والے پر ان کو میں نے بتایا تھا تو وہ بھی گرو جی کی سنگت ہے. تو وہ بھی ان کا بھی سامنے سے ہی کال آیا کہ آپ ستسنگ کر رہے ہو کہ نہیں میڈم یہ کر کے پوچھنے لگے. میں نے کہا کرنا تو ہے آپ آ جانا. میری بہن بھی آئیں گے گھر کے بولا. تو وہ بھی آ گئے. مطلب ان کا بھی آنے کا ہو گیا. تو ایسے کرتے کرتے ہم 5-6 لوگ ہو گئے. پھر
सत्संग करने के एक दिन पहले भी मुझे एक वो मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा था मेरे से कि मेरे को कल करना ही है। फिर अचानक से ऐसा योग बना कि मेरे हस्बैंड को मैंने जो भी बोला सब उन्होंने मुझे ला के भी दे दिया, सब सामान। और हमारे किराना स्टोर है तो बाकी जो कुछ था वो सामान मैंने वहीं से सब ले लिया। और गुरुजी के चोले में मेरे नया बेडशीट पड़ा था वो यूज़ हो गया, और कुछ कोरे कपड़े पड़े हुए थे वो यूज़ हो गए। तो इस तरीके से गुरु पा का दरबार भी वो हो गया। और केक केक भी मैंने दूसरों से ही मंगवा दिया। मैंने मेरे अंकल को भी, वो मैंने नहीं बोला कि मुझे केक भी ला के दो ऐसा। तो मैंने फिर उनको मतलब जो भी करना था मैंने कर दिया, तो उनसे मंगवा लिया और सारी व्यवस्था हो गई। गुरु पा ने सारी व्यवस्था ही करवा दी। और मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था कि क्योंकि संगत बढ़ती जा रही थी। मतलब हम कुल मिला के 9-10 इतने हो गए थे। और हमारे यहाँ पे गुरु जी को कोई मतलब कभी देखा ही नहीं और किसी मानते भी नहीं है, बिल्कुल नया। क्योंकि हम लोगों ने पहली बार सबने देखे और सुना और संगत में जुड़े गुरुपा से। गुरुपा ने हमको जोड़ा, तो सबके लिए नई वो है। तो हम तो भी 10-12 इतने लोग हो गए। तो मुझे मतलब वही टेंशन ही हो रहा था कि मैं पहली बार कर रही हूँ, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। पर गुरुपा ने ऐसा साथ दिया कि बहुत अच्छे से सत्संग हो गया मेरे घर में। और उस समय जब मैं मतलब गुरुपा जब सत्संग स्टार्ट हुआ उसके बाद सब हमने चाय समोसा जल प्रसाद सब हो गया। उसके बाद में भी फिर किसी को भी गुलाबों की खुशबू नहीं आई, सिर्फ मुझको ही आई। मैं बोल रही हूँ कि पूरे घर में महक आ रही गुरुपा की, मतलब गुलाबों की खुशबू आ रही। बाकी बोले हमको तो नहीं आ रही। मैंने कहा मेरे को तो आ रही। यूँ कह फिर कल सुबह में फिर जल प्रसाद के अंदर ओम के दर्शन साक्षात हुए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर वो सभी ने देखा जितने भी हमारे यहाँ रुके थे, मेरी बहनें बाकी लोग भी रुके थे। फिर उनको भी मैंने दिखाया तो स्पष्ट ओम के दर्शन गुरुपा ने कराए हमको। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे तो गुलाबों की खुशबू भी बहुत अच्छे से आई, हल्की हल्की सी आती ही रही पूरे सत्संग में। उसके लिए बहुत शुक्राना। और फिर कल में गुरुपा ने मैसेज किया कि पुत्र कल मैं तेरे घर आया था और मैंने तुम सबको ब्लेस कर दिया। सत्संग में जो भी आए सबको मैंने ब्लेस कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत। क्योंकि तब हम मतलब बाकी लोगों को यूँ ही लग रहा था क्योंकि वो सब पहली बार ही सत्संग में बैठ रहे थे। हम मैंने भी पहले किया था पर वो अकेले बैठ के ही किया था। बाकी सारे लोग फर्स्ट बार ही सब हम सत्संग, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लोग करते नहीं और किसी ने देखा ना सुना, इस कारण। और बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी। और गुरुपा ने बहुत अच्छे से करवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, एक और सत्संग है आज के दिन का है मेरे। आज कहीं हम बाहर गए थे तो गुरुपा ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन, जब से मैं घर से निकली उस समय से ही तितली जहाँ पे मैं गई वहाँ तक मतलब दिखती ही रही, एक के बाद दूसरी बार तीसरी, ऐसा मतलब पूरे रास्ते में मुझे तितली स्वरूप के दर्शन होते ही रहे। और मोर के भी बहुत प्यारे दर्शन हुए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मोर के बहुत प्यारे दर्शन हुए मुझे। और तितली तो मुझे रोज़ाना ही दिखती है। और अभी तो पता नहीं क्यों बरसात के कारण भी, और वो गुरुपा की जो मतलब स्वरूप था वो तो मुझे अलग ही वो लग जाता, क्योंकि पूरी गर्मी में भी वही तितली आती रहती थी गुरुपा के मतलब दर्शन देने, ब्लेस करने के लिए आती ही रहती थी। तो मुझे वो अलग ही पहचान में आ जाती कि ये गुरुपा ही है, क्योंकि वो अलग ही रंग का ऐसे ऑरेंज और थोड़ी ब्लैक ब्लैक ऐसी इस टाइप की वही आती थी। बहुत गर्मी थी या कैसा भी समय था, पर वही तितली रोजाना आती थी। और फिर अलग अलग रूप में भी, पर अभी भी वही आती है। उसके बाद फिर रंग बिरंगी दूसरी भी आती है।
इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप हमको रोज़ ब्लेस करते रोज़ जाना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी करनाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम रेखा है और मैं करनाल से बोल रही हूँ। मेरे गुरु पा की मुझ पर बहुत रहमत है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना संगत जी 8 जून को बड़े मंदिर गई थी, मेरे गुरुजी का बुलावा था। तो संगत जी मेरे को ना उससे 2-3 दिन पहले हमारा एसी ख़राब हो गया था। तो मेरे मतलब हमने जो मैकेनिक भैया को बुलाया, तो उस दिन हमें बड़े मंदिर के लिए भी निकलना था। तो हमें तो 12 बजे निकलना था। तो 10 बजे भाई वो मैकेनिक भैया आए और उन्होंने एसी ठीक किया। उसमें उनका इतना टाइम लग गया क्योंकि अंदर से चूहे ने तार काट दी थी। और संगत जी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को तो ये लग रहा था क्योंकि मैकेनिक भैया को बहुत टाइम लग रहा था, एसी की सर्विस भी होनी थी और एसी को पूरा अंदर से काटा हुआ था। तो मेरे पास तो थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा कि ये तो बहुत, क्या पता कितने पैसे मांगेंगे अब, तो हो सकता है शायद मैं अफोर्ड भी ना कर पाऊँ, पता नहीं कितने मांगेंगे। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, पर चलो अब देखते हैं क्या होता है। पर हम बड़े मंदिर के लिए जाना था, इधर से लेट भी हो रहे थे, हस्बैंड अंकल को भी आना था गाड़ी लेके। तो खैर शुक्र है वो तब तक नहीं आए थे, वो भी 1 बजे आए। और तब तक इन्होंने भैया ने काम किया, मैकेनिक भैया ने, तो काफ़ी टाइम लग गया और समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने जब पैसों की मांग की, मतलब मैंने बोला भैया आपको कितने पैसे देने हैं, करने के बाद बोले कि उन्होंने तो मेरी तो सोच से बहुत कम पैसे बताए। मैं तो समझ ही नहीं पाई, मैं तो हैरान रह गई कि हैं सिर्फ इतने रुपए। आपको यकीन नहीं होगा संगत जी, उन्होंने सिर्फ मुझसे 600 रुपये लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो जैसे इतना चमत्कार कैसे हो गया। काम तो उसने 2-3 हज़ार का किया है और ये उसके मुंह से सिर्फ 600 रुपये। मैंने पूछा भैया कितने डालने हैं, 2 बार पूछा भैया कितने डालने हैं, बोला 600 बोला है, आपको 600 रुपये डाल दो। तो मैंने तो बहुत शुक्राना किया गुरुपा का। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने तो मेरी लाज रख ली, क्योंकि मेरे समझ नहीं आ रहा था। मेरे अकाउंट में भी, मेरे फ़ोन पे में भी उस टाइम कुल 1500 ही रुपये थे। मेरे मालिक आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सोच रही थी ये तो काम इसने 2-3 हज़ार का कर दिया, पर आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरी लाज रख ली और मुझे मैकेनिक भैया के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। कि अगर अगर वो ज़्यादा बता देते तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करती क्या नहीं करती, और जाने के लिए भी रोक मिल गया, मतलब बच गए मेरे पास। शुक्र है मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय मेरे गुरुपा, ये तो मेरे सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं, ऐसे चमत्कार मेरे सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे वो सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।